Good evening to all my friends, elders. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing platform, learning platform with Sumit, with an amazing chapter of chemistry, chapter 2, acid-base salt. So, please enjoy this video, share to your friends, and now we are going to start today's lecture. So, in last lecture, we had discussed about physical properties of an acid. Physical properties of an acid, basically there is a change, sharp change in the physical composition of an acid. That is why these are known as physical properties of an acid. Hope this is clear. Physical properties, today I already wrote 2 points on the board. You can see. First point is all mineral acids. All mineral acids are good conductor of electricity and conducts electricity in their aqueous solution. So all mineral acids basically are good conductors, not a poor. Good means it conducts electricity. Why it is a good conductor? Due to presence of free flow electrons, yeah, presence of ions, and conducts electricity in their aqueous solution, not in a others aqueous solution, in their own aqueous solution. Hope you understand. Some acids are solid in nature. Some acids are solid. Some acids are solid means basically they are rigid. Basically they have less intermolecular space. Very shockingly, acids are also solid in nature, but some I had written in first word some. So it changes the meaning totally. Not all acids. Some acids are solid. Some, not all. Some acids are liquid also. Some acids are solid in nature. Example can be asked in exam. So you must remember, one is oxalic acid and another one is boric acid. One is oxalic acid and another one is boric acid. Oxalic acid, oxalic acid and boric acid. These are the two acids, boric and oxalic, which are basically what? Solids in nature, acids which are solid in nature, and some are liquid. So which acids are liquid? Like HCl. HCl का नाम सुना है आप लोगों ने? HCl जो होता है बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है करोसिव होता है स्किन के लिए. एक सिंथेटिक एसिड भी है, ये भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज देखिए उन लेक्चर्स को, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा. तो HCl बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, करोसिव होता है. लेकिन क्या HCl सही में बॉडी के लिए हार्मफुल होता है? आइए जानते हैं इसको डिटेल में. HCl जो होता है बॉडी के लिए हर समय हार्मफुल नहीं होता, हमारे कारण ही वो हार्मफुल बन जाता है. कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं. जैसे स्टोमक में आप HCl जो है रिलीज होना बहुत जरूरी है. इसके पीछे 3 रीजंस है. जम्स को मारता है, डाइजेशन में एक्टिवली मदद करता है, और जैसे कि बायोलॉजी के पहले चैप्टर जो न्यूट्रिशन है, अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखिए. बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया, टाइम टेकिंग है बट नॉलेजेबल्स है. तो देखिए, तो उसमें क्या होता है जनरली, वो जो क्या नाम है उसका, पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे दैट इज पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है. अब मान लो आपने हर 4 घंटे को 1 घंटे 2 घंटे कर दिया, लगातार खाए जा रहे हो एक ही बार में पूरा मील, तो HCl जो है ज्यादा रिलीज हुआ और म्यूकस लेयर बनने का समय नहीं मिला. चला गया मैं बायोलॉजी में, लेकिन आप समझो कि किस तरीके से HCl हार्मफुल होता है. अब HCl जो है वो यूजफुल भी होता है. HCl कैसे यूजफुल होता है मैंने अभी आपको बताया, स्टोमक में. अब यही HCl जो होता है ये लिक्विड होता है. कैसा लिक्विड होता है पूछा जाता है. तो HCl इज जनरली वॉलेटाइल लिक्विड. वॉलेटाइल लिक्विड, LIQ इज अ शॉर्ट फॉर्म. वॉलेटाइल का स्पेलिंग क्या है? VOLATILE. वॉलेटाइल लिक्विड. HCl कैसा है? वॉलेटाइल लिक्विड. और एक है H2SO4, ये भी लिक्विड है लेकिन ये वॉलेटाइल नहीं है. कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है. NV, नॉन वॉलेटाइल. NON बस लग जाएगा, वॉलेटाइल का सेम स्पेलिंग है. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ लिक्विड बट नॉन वॉलेटाइल लिक्विड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एज वेल एज लिक्विड, it is a volatile liquid acid. Hope this is clear. Take a quick screenshot. Now your task is, now I am going to give you a task. Okay,
So let's clean the board. That what is volatile liquid? This is short form. आप लोग पूरा लिखना, ठीक है? नॉन वोलेटाइल लिक्विड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है? इजी है, डिफरेंस बोल रहा हूं, मतलब क्या है ये बताना है। उसके बाद आप उसको डिफरेंस फॉर्म में बना भी सकते हो, उससे क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना? तो ये आप लोग का टास्क करेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करके कर लेना आप लोग। अब मैं आ जाता हूं अगले टॉपिक पे, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अगर नहीं होगा, समझने में दिक्कत होगा, तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपने कंफ्यूजन, अपने हर एक डाउट को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, केमिकल 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 प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। अभी तक हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा। अच्छा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिन्हें याद होगा, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, जो भी है, समझ गए ना? तो पता कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो वो बोर्ड एग्जाम में बहुत, मतलब हीटेड क्वेश्चन मींस बहुत बार पूछा जाता है। प्रॉब्लम क्या बनता है, जवाब दिमाग में आता नहीं, क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है। तो इसका क्या आप लोग आंसर लिखोगे? हीट इवोल्यूशन होता है, कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं, इन जनरली हम कह सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन है। कलर चेंज भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हीट इवोल्यूशन मतलब दोनों ही है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है, ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे। कलर चेंज होता होगा, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है ना? डाउनवर्ड एरो, ठीक है, गैस के लिए अपवर्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ध्यान रखने वाला है। अच्छा, एक मिनट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मींस चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन शॉर्ट फॉर्म है कंपोजिशन का, कंप्यूटर मत समझना, ठीक है ना? तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो सकता है, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला आ जाता है, हालांकि मैं पूरा एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करूंगा, कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बता दूंगा आपके नॉलेज के लिए। यू कैन स्किप अगर आपको मन नहीं है, मन तो मैं कहूंगा नहीं, दरअसल आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है, जो कोप अप कर सकता है उसके साथ, दे कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट, ये आपके एनसीईआरटी का है, ये आपके एनसीईआरटी का है, क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, या एसिड विथ मेटल्स, एसिड विथ मेटल्स लिखते बेहतर रहेगा, एसिड विथ मेटल्स। क्या होता है भाई, क्या होता है? क्या मैं पहले इसे वर्ड इक्वेशन में लिखूं कि डेफिनेशन लिखूं? पहले मैं डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं, फिर वर्ड इक्वेशन में लिख दूंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखना, मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको बोर्ड्स में भी लिखना है, अगर इसे एक्सप्लेन करने बोले तो। व्हेन a metal above हाइड्रोजन, ध्यान देना, मतलब अभी आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना डेफिनेशन देख के,
ये बहुत भयानक सा डेफिनेशन लिख दिया, डरना नहीं है, मैं सब बताऊंगा। व्हेन अ मेटल अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज in the reactivity series, when a metal above hydrogen in the reactivity series reacts with dilute acid DIL डॉट कर दिया, ठीक है ना, समझ लेना। डाइल्यूट को आप पूरा भी लिख सकते हो, DILUT। डाइल्यूट मतलब बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें एसिड कम होता है, सॉल्वेंट यानी कि पानी ज्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखना। सॉल्वेंट का कुछ और भी हो सकता है। सवाल है आप लोग के लिए कि डाइल्यूट एसिड जो हम बोलते हैं, क्या उसमें सॉल्वेंट कुछ और हो सकता है? सॉल्वेंट एनीथिंग। अब आप इसका जवाब मुझे देना, कैन बी, अगले लेक्चर तक मैं भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसका आप लोग बताना आंसर क्या हो सकता है, कि डाइल्यूट एसिड में क्या सॉल्वेंट पानी होना नेसेसरी है कि और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन अ मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, मैंने लिखा भी दिया था पहले चैप्टर में, अगर आपको याद हो, वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हो, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन to form metallic salt, क्या बनाता है? मेटेलिक सॉल्ट, टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट, ओहो, एंड हाइड्रोजन गैस, एंड क्या? एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा लैंग्वेज है, ये ज्यादातर जगह यूज होते हुए मैं देखा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, हाइड्रोजन लिबरेटेड, पॉप साउंड, लाइम वाटर टेस्ट, इस तरीके से मैंने सुना था लिबरेटेड। तो दिस कैन बी अ वेरी नाइस लैंग्वेज, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा इसको। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन आपको नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यही कंक्लूजन पैदा किया जब मैंने देखा रिएक्शंस को। देखो जनरली क्या होता है, ये जो मेटल है, मेटल क्या होता है, प्रॉपर्टीज अपने 9 में मैंने बताया भी है, मेरे एक मींस लेक्चर में, मुझे जहां तक याद है मेटल का प्रॉपर्टी बोला हूं, कौन से लेक्चर में, शायद इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब आपको याद होगा क्योंकि इस साल 9 का बुक बदला है, लेकिन पिछले साल आप लोग पढ़े थे, जो लोग अभी 10 का वीडियो देख रहे हैं। तो देखो जो मेटल है वो अगर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज बताया, अब मेटल को हाइड्रोजन से ऊपर होना है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन से कम होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा तभी तो डिस्प्लेस कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो यही नियम है। अगर डिस्प्लेस कर पाया तो अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। इतना कंक्लूजन ये पैदा हुआ कि अगर अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज हुआ तो डिस्प्लेस करेगा, और अगर डिस्प्लेस करेगा तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो दोनों ही बात सही है, उसका उल्टा और उसका सीधा, जो भी है आप जिस तरीके से समझ सको। तो रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटिक के समय कुछ और बनता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है कि नहीं? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। क्या बनाता है? मेटेलिक सॉल्ट बनाता है। मेटल का सॉल्ट मतलब जो बच जाता है हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद एसिड के साथ, वो मेटल के साथ कंबाइन करता है, सॉल्ट बनाता है। और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड बोल सकते हो, रिलीज्ड बोल सकते हो, प्रोड्यूस्ड बोल सकते हो। सो समझ में आया? अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लिए हो। सारे रिएक्शंस देखने के बाद मैंने ये कंक्लूजन पैदा किया। मैं इसके आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तो ये आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, आई एम सॉरी। चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा इजी एग्जांपल, Zn प्लस H2SO4। H2SO4 आप कैसा लोगे? डाइल्यूट। क्या बनेगा? ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मुझे बताओ ZnSO4 क्या है? यही आपका मेटेलिक सॉल्ट। ये क्या है? मेटेलिक सॉल्ट। हाइड्रोजन गैस ये क्या है आपका? एसिड। ये क्या है आपका? मेटल। तो मेटल प्लस एसिड गिव मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अभी से मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो ये है क्या? ये है एक प्राणी जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? ऐसे समझ सकते हो, सल्फेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फेट हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता, बोला तू चल जा, नहीं चाहिए तेरा। जिंक को बुलाता है, आजा आजा, अब तू मेरा नया दोस्त है। तो जिंक के साथ सल्फेट बन गया जिंक सल्फेट। कैसे आया? तो 9 में आपने जो कहानी पढ़ा था केमिकल फॉर्मूला का, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, तो ठीक है। तो क्रिस क्रॉस अगर आप करोगे तो Zn का 2 वैलेंसी है, SO4 का भी 2 है। अभी आपको प्लस माइनस ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। इसका 2 माइनस है, इसका 2 प्लस है, तो 2 प्लस 2 माइनस गया तो ZnSO4 बनेगा। सेम वैलेंसीज कभी भी नहीं टिकेंगे। जैसे सेम चार्ज रिपेल करते हैं वैसे ही सेम वैलेंसीज भी नहीं टिकने वाले। सेम कभी भी कुछ नहीं हो सकता, ऑपोजिट का चांसेस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जिंक सल्फेट बन गया, यह है केमिकल फॉर्मूला, और हाइड्रोजन गैस निकल गया। बोला अच्छा चलता हूं दुआओं में, याद रखना है ना। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। तो मेटल प्लस, तो इससे आप क्या लिख सकते हो? इसे वर्ड इक्वेशन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे वर्ड इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हो? ले लिया। इसे आप लोग वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हो। वर्ड इक्वेशन में क्या लिख सकते हो? मेटल, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटेलिक सॉल्ट, MS लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां जो मेटेलिक सॉल्ट है उसके जगह पे एक और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी बुक में दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, ठीक है। अब आप क्या करना, इसको एक बॉक्स के अंदर बना लो। बोर्ड्स एग्जाम के एक दिन पहले ये सब याद करके जाना, रिएक्शन कुछ आपको याद नहीं करना। अगर ये याद हो गया तो आप रिएक्शन अपने आप लिख दोगे। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? गॉट द पॉइंट? तो आप इसका स्क्रीन, अच्छा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना। अभी एक काम करो, और एक रिएक्शन में लिखता हूं, कॉपर प्लस H2SO4, ये रिएक्ट करेगा ना? करेगा, ये रिएक्ट करेगा। देखो तो करेगा कि नहीं? मेरा तो मानना है करेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। करेगा रिएक्शन। देखो ये बनना तय है, मेटल प्लस एसिड मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये कन्वेंशन है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये रिएक्शन होना तय है, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, याद करोगे तो बने रहोगे मंच में, याद नहीं करोगे तो मंच में पैर फिसल जाएगा, पैर फिसल गया तो फिर मुश्किल है। तो इसके केस में क्या होगा? एनआर होगा, एनआर इन द सेंस नो रिएक्शन। रिएक्शन होगा, कॉपर तो रिएक्टिव है ही नहीं हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये सेंस वाला लगाने वाला बात है। अगर कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं तो डिस्प्लेस कैसे करेगा? कोई ऐसा मेटल होना चाहिए जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। अभी देखो, तो इस तरीके से बोर्ड में सवाल आएगा तो आप लोग फटाक से कर दोगे ना। केस बेस में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है कि डू ऑल एसिड्स, डू ऑल मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम acid, dilute acid? So no, the answer is no. Only बोलना है शुरू में, only, ONLY, only those metals which are above means ऊपर, which are above of hydrogen, हाइड्रोजन के ऊपर है, above hydrogen, which are above hydrogen, of नहीं लिखना है, which are above hydrogen in the reactivity series of metals, या metals होगा कि non metals होगा? metals. So in the reactivity series of metals या in the reactivity series displace hydrogen from the dilute acid, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। भूल करके भी भूल नहीं करना है, मतलब गलती से भी गलती नहीं करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ। अच्छा और भी लिखो, ठीक है, मेरे पास कमी नहीं है। अभी देखो इसका मुझे बताओ, अगर मैंगनीज के साथ, मैंगनीज तो मेटल है,
किसका रिएक्शन कराए, H2SO4 का ही कराते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया काम, इसको डाइल्यूट कर दिया 1%। अब डाइल्यूट कर दिया 1%, इसका कुछ मतलब है, ध्यान से सुनना। अगर डाइल्यूट 1% कर दिया तो क्या कहानी बदल जाएगा, इसको याद ही रखना है। केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको, मतलब कुछ मैं कह रहा हूं, क्लास 10 में मैक्सिमम चीजें आपको याद रखना है, ये क्लास 10 में है भी नहीं, ये पूछेगा भी नहीं। डाइल्यूट कर दिया 1%, 10%, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग इसे याद रखना, अगर मान लो आ गया तो डाइल्यूट 1% कर देने से यहां पर कहानी नहीं बदलेगा। तो आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट वही बनेगा जो इसको बनना है। मैंगनीज का जो वैलेंसी है MnSO4, क्या बनेगा यहां पर, एसिड प्लस मेटल, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा, और क्या बनाएगा, MnSO4 होल ट्वाइस की MnSO4 ही बनेगा सिर्फ। बताओ इसको क्या होगा, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, MnSO4, इसमें MnSO4 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका तो 2+ होता है, इसका 2- होता है, दोनों कट जाएगा, है ना। केमिकल फॉर्मूला में आपने पढ़ा ही होगा ना 9 में, भूलना मत, वो कहानी नहीं भूलना है 9 वाला, उसका बहुत यूज है। अभी मान लो इसके जगह HNO3 होता, मैंने इसके जगह HNO3 कर दिया, ठीक है, तो क्या कहानी बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। वही चीज HNO3 को अगर मैंने रखा, इसको डाइल्यूट कर दिया 1%, डाइल्यूट कर दिया 1%, तो क्या बनेगा, MnNO3 होल ट्वाइस, NO3 का माइनस होता है, Mn का 2+ होता है, तो क्रिस क्रॉस करने पर NO3 के ऊपर आ जाएगा, तो NO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, Fe प्लस H2SO4, अब आप मुझे बताओ इसमें क्या बनेगा, Fe प्लस H2SO4 डाइल्यूट ही है, कंसंट्रेटिक अभी तक मैं बोला नहीं हूं, डाइल्यूट ही है, ठीक है ना, कि कुछ लोग मान लो कंसंट्रेटिक सोच लिए, तो Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4, बताओ 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 क्या बनेगा, क्या बनेगा, अभी बताया, मेटल प्लस एसिड गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, करेक्ट। तो क्या बनाएगा, FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस H2 बोला, अच्छा चलता हूं, तो H2 अगर रिलीज हो गया तो ये गैस को साइन दे देना। FeSO4 कैसा है, सॉल्ट है, तो AQ लिखोगे कि सॉलिड लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, फिजिकल स्टेट क्या लिखोगे, बताओ मुझे, बताओ क्या लिखोगे फिजिकल स्टेट। अच्छा ये तो सॉल्ट बन रहा है, क्या होगा इसका फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट आप लोग खुद लिखना, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना आपको समझ में आया, हाउ मच डू फॉलो द एनसीईआरटी बुक, ओके। सो फिजिकल स्टेट आप इसका लिखना, और बोर्ड्स में क्या होता है, फिजिकल स्टेट हर एक रिएक्शन में लिखना बहुत जरूरी होता है, इसमें कॉपी में एक्सप्रेशन इंप्रेशन बनता है, प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे, चांस कम है कटने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये Fe, अब मुझे नहीं पता, मैंने अपने टीचर से सुना, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है। तो Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। सब आप अपने रफ कॉपी, केमिस्ट्री कॉपी, जो रिस्पेक्टिव कॉपीज है उसमें लिख लेना, काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट जाए वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी H2SO4 यहां पर मैंने ले लिया कंसेंट्रेटिक, CONC डॉट दे दिया, डॉट CONC डॉट का मतलब कंसेंट्रेटिक होता है, ये मेरे लिए शॉर्ट फॉर्म है, मैक्सिमम टीचर्स यही करते हैं, CONC डॉट लिख देते हैं अपने काम को इजी करने के लिए। मैंने तो कहा था कॉपर जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, मानते हो कि नहीं आप लोग भी, आप लोग का भी यही मानना था। अगर आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गया होगा, अगर बोर्ड में बने रहना है तो देखिए कॉपर अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कंसेंट्रेटेड के साथ होगा तो कॉपर पर को सल्फ्यूरिक एसिड बोलेगा, अब रिएक्शन होगा, तो टेंशन मत ले, क्योंकि अब मैं कंसेंट्रेटिक हूं। तो क्या रिएक्शन में बनेगा, क्या बनेगा रिएक्शन में, अगर ये कंसेंट्रेटिक हुआ तो रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान देना, CuSO4 प्लस SO2 नामक एक गैस बनेगा, प्लस पानी बनेगा, पानी बोला। अब थोड़ा सा मैं भी अपना जलवा दिखाता हूं,
तो पानी बनेगा। तो ये बनना ही बनना है, पानी बनना, सल्फर डाइऑक्साइड बनना तय है। अगर कंसंट्रेटिक एसिड आपने लिया, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटिक लिया, कोई भी मेटल के साथ अगर आपने कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ये बनेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बनना तय है, और फिर जो मेटल है वो रिस्पेक्टिव बचा कुचा जिससे है उसके साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। आपको पता है कॉपर का 2+ इसका 2- दोनों कट गया, इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला है। कॉपर सल्फेट CuSO4। दूसरा रिएक्शन Zn + H2SO4। मैंने कहा कंसंट्रेटिक ले लो, कंसंट्रेटिक ले लो, बनेगा क्या, ZnSO4, वही सेम कहानी, SO2 बनेगा, गैस प्लस पानी बनेगा, ठीक है, प्लस पानी बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? बोर्ड में इसका जनरली जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, इंपॉर्टेंट जरूर है आपके आगे की स्टडीज के लिए। एनसीईआरटी में नहीं है ये, मैं बता दे रहा हूं, अगर आप खोजने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, किसी फाउंडेशन बुक में, किसी एडवांस बुक में आपको जरूर मिलेगा। तो देखो, हाँ, तो देखो क्या लिखना है आपको, अगर आपको ये इसका जस्टिफिकेशन मान लो आ गया बोर्ड में, चांसेस कम ही है, तो आपको लिखना है कि ये बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज वाई ये रिएक्ट करता है। कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बताओ कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? ये खुद ऑक्सीडाइज, मतलब ये खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? तो इसीलिए ये लिखना है आपको, लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिखना है आपको, स्ट्रॉन्ग लिखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज वाई ये रिएक्शन हो पा रहा है, कॉपर के साथ हो रहा है, जिंक के साथ हो रहा है। ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ऐसे करके लिख सकते हो, उसके बाद भी याद कर लेना, अगर मान लो आ गया फिर बोलोगे आपने बोला था मतलब तुमने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ गया, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिएक्शन का कमी नहीं है। अब हम लेते हैं मैंगनीज के साथ नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटिक। भाई साहब, अब नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटिक लोगे तो रिएक्शन फिर से बदलेगा। कितना बदलेगा? पूरा बदल जाएगा। अगर पूरा बदलने का नियति रहेगा तो पूरा ही बदलेगा। चलो देख लेते हैं। मैंगनीज प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, कोई दिक्कत? कैसे आया आपको पता ही होगा, H का +1 NO3 का -1, ये आपने लिया कंसेंट्रेटिक, तो क्या बना? Mn, क्या बना? MnNO3 होल ट्वाइस। आपको पता ही है मैंगनीज का +2 NO3 का -1, प्लस इसमें एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नामक गैस। आपको पता ही होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसका बहुत बार जिक्र हो चुका है पहले चैप्टर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नहीं देखा तो देख लीजिए, काम देगा। और जो बच गया और एक, वो है पानी, पानी भी बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ये भी एक रिएक्शन है। जब HNO3 कंसेंट्रेटिक हुआ तो ये बनेगा, NO2 बनना तय है। अगर नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटिक होगा तो जितने भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा NO2 गैस बनाएगा प्लस पानी बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है, जरूरी नहीं है सब आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉपर के साथ, मान लो किस रिएक्शन हुआ। सेकंड, स्क्रीनशॉट लेना नहीं है अभी, मैं जब बोलूंगा तब ले लेना। तो कॉपर प्लस HNO3 अगर हुआ कंसेंट्रेटिक, तो क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 लिख रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने CuNO3 क्यों लिखा? CuNO3 होल ट्वाइस क्यों नहीं लिखा? ये आप लोग खुद बताना, ठीक है ना, बहुत बार बता चुका हूं। NO2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, प्लस पानी। अगर ज्यादा मदद कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या सीखोगे? सीखना है, विजुअलाइज करना है केमिस्ट्री को, रिएक्शन भी करना है। अगर आपके पास हो, नहीं हो तो एक दो तो टेस्ट ट्यूब रखो, एक दो एसिड रखो, रिएक्ट करके देखो, समझ में आ जाएगा। अपने टीचर्स के पास जाओ, अगर केमिस्ट्री लैब में वो फ्री रहेंगे, यू सी द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ देम, इन विजन ऑफ देम, मतलब उनके सामने करना। एज बिकॉज दिस रिएक्शंस कैन बी हार्मफुल टू योर स्किन। अगर स्किन में गिर गया, हाईली करोसिव हुआ, हाईली एक्सोथर्मिक हुआ, बर्स्ट भी हो सकता है। आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ
ये सब करना है, तो एक बार पढ़ लेना है फिर जाना है, बिना पढ़े जाओगे तो आपको ही पता है, आगे नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अभी कुछ एक नॉलेज देना इंपॉर्टेंट। एक टर्म होता है फेरस। फेरस जब 2 होता है, आयरन 2 बोलते हैं हम लोग, फेरिक। फेरिक मतलब आयरन 3 भी बोलते हैं। अच्छा, फेरस और फेरिक में अंतर क्या है जानते हो? कलर में अंतर है। फेरस जब भी होगा आंख बंद करके ग्रीन लिख देना है। फेरस मतलब ग्रीन, फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, फेरस का कुछ भी सॉल्यूशन हो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अब फेरिक, फेरिक का जैसे फेरिक एक रस्ट वाला मैंने आपको रिएक्शन बताया था, अगर आपको याद हो, रस्टिंग ऑफ आयरन में Fe2O3 जो बनाता है, याद है कि नहीं? फेरिक ऑक्साइड। तो यहां पर उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। आरबी लिख दे रहा हूं, ठीक है। रेड ब्लू मत समझना, रेड ब्लड सेल मत समझना, कुछ भी मत समझना, नहीं आपको क्या समझना है इसे? रेडिश ब्राउन। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। रेडिश ब्राउन इसका जनरली कलर होता है। फेरिक क्लोराइड का होता है जिसे FeCl3 बोलते हैं। Cl का -1, Fe का +3, तो FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड का रेडिश ब्राउन कलर है। तो फेरिक होगा तो रेडिश ब्राउन होगा, आंख बंद करके बना देना है। अभी फेरिक अगर ऑक्साइड हुआ तो वो भी रेडिश ब्राउन, जो मैंने आयरन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में बताया था। और फेरस जब भी होगा तो ग्रीन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाला, याद रखने का अच्छा तरीका है। तो अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है ये सब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं बहुत देर से बोलना चाहता था लेकिन भूल जा रहा था, चलिए अब याद आया तो बोल ही दिया। अब हम अगले रिएक्शन में बढ़े, अगले रिएक्शन में बढ़े। अगला रिएक्शन किसके साथ किया जाए? अगला रिएक्शन किसके साथ किया जाए? रिएक्शन तो बहुत सारे हैं। अगला रिएक्शन चलिए हम उसके साथ कर देते हैं। किसके साथ बोलिए? रिएक्शन ऑफ metals with reaction of acids। एसिड्स तो आप जानते हो कि नहीं, जो सावर इन टेस्ट, एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट जानते हो कि नहीं? और मेटल बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप लोग इसकी जगह पे लिख सकते हो, है ना। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लोग लिख सकते हो, यानी कि HCO3, यही होता है बाइकार्बोनेट, कि CO3 के आगे बस H लग जाता है। बाई शब्द में ज्यादातर H लगता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, याद रखना। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। तो मान लो मैंने ले लिया, वर्ड इक्वेशन में पहले लिख देता हूं। तो मेटल प्लस आपने किया, मेटल प्लस कार्बोनेट प्लस एसिड लिया, तो क्या बनेगा इसमें? प्रोडक्ट ध्यान रखना, एक सॉल्ट बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट लिखना आप लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट COR, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा? प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, बिल्कुल नहीं, पानी रिलीज होगा। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये याद रखना, भूल करके भी गलती मत करना, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अभी जैसे मान लो, ये समझ में आया ना, मेटल कार्बोनेट एसिड गिव इतना, अच्छा ऐसा है। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लिया, मैं इसको लिख रहा MBC शॉर्ट फॉर्म, आप लोग पूरा लिखना, यहां पर हेडिंग में भी दे दिया है। तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मान लो एसिड का रिएक्शन किया, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसलिए सेम लिख दे रहा हूं, सेम प्रोडक्ट यही बनेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड, वही पानी, वही सॉल्ट, कोई बदलाव नहीं कहानी में, यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, गलती नहीं होगा ना? हाँ बस ठीक है, तो यही सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो,
अच्छा, तो इसे कैसे समझे, जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, Zn का 2 प्लस जिंक कार्बोनेट का 2 माइनस होता है, याद है आपको, तो कट जाते हैं इसलिए ZnCO3 हुआ। अच्छा, ये जो ZnCO3 है ये पहले से ही क्या है, मैं बता देता हूं आपको, ये पहले से इसमें कुछ वाटर का कंटेंट रहता है, तो जब आप इसे तोड़ोगे ना तो आपका CO2 प्लस H2O बनना तय है, प्लस एक जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो ये अपने आप देख रहे हो। अच्छा, बैलेंस है, बैलेंस नहीं भी करोगे तो चल, बैलेंस एक दो, हाँ बैलेंस ही है ना, बैलेंस ही है। तो यहां पर एक H2O रखना पड़ेगा, है ना, यहाँ ऑलरेडी एक वाटर का कंटेंट होता है, तो अगर ऐसे रखोगे तो बैलेंस होगा, तो आपको फिर यहां पर 3 ऑक्सीजन, एक 4, एक दो, हाँ बैलेंस हुआ 4, बैलेंस हो गया ना। तो ये बनता है, अगर आप सिंपल डिकम्पोजिशन करोगे तो इस तरीके से याद रखते, इसलिए मैंने यहां रिएक्शन लिखा, इंपॉर्टेंट है याद करने का तरीका, याद करने के लिए लिखा हूं, ठीक है, याद करने के लिए कि जिंक कार्बोनेट को अगर डिकम्पोजिशन भी करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यही पानी बनेगा ही बनेगा, ये तो बनेगा, इसको पहले ही आंख बंद करके लिख देना है, कुछ नहीं सोचना है। अब जो जिंक ऑक्साइड है वो कैसे आया, तो वो जिंक रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, प्लस पानी ऑलरेडी था, ध्यान रखना, तो वो पानी का कंटेंट पहले से ही रहता है, तो ये बनता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं अभी इसके एग्जांपल्स बताऊंगा। ले लिया ना, ले लिया कि नहीं, ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, यही ZnCO3, ये जो जिंक है, जिंक को, अच्छा ब्लू मार्कर से लिखा जाए, ठीक है, ये जिंक है, इसको आप रिएक्ट कराइए, जिंक तो मेटल है, मेटल के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, जिंक को आप कराइए किसी भी एसिड के साथ, मान लो मैंने करा दिया, एसिड तो नहीं, अच्छा मेटल कार्बोनेट बोला ना, तो ZnCO3 को किसके साथ कराइए, HCl के साथ कराइए, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनना तय है, और जिंक क्लोराइड, कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना दिया पानी, पानी बन गया, या फिर किसी एक को पहले ही लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो या फिर पानी लिख दो, पहले अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो तो बच जाता है एक ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन बच जाता है, एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना बचता है, यहां पर एक ही है, एक ही हाइड्रोजन, तो वो एक हाइड्रोजन वहां पर पानी बन गया, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन फिर पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, इतना समझ में। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है क्या बैलेंस, टू जोड़ोगे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, अजीब है, हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन भी बैलेंस ही है, ऑक्सीजन कितना है, तीन है, तीन है, कार्बन एक कितना है, कार्बन एक एक है, ठीक है, बैलेंस ही हो गया, ठीक है। तो कार्बोनेट प्लस जिंक कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट पानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तो कहानी बदल जाएगा क्या, किसने कहा आपको कहानी बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा, तो HCl के साथ मान लो किया, तो अब ZnCl2 बनाएगा, प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वही पानी, ठीक है। अच्छा, तो देख रहे हो क्या बनाया, अब बैलेंस है क्या, ये दो हाइड्रोजन हो गया, यहां पर एक एक दो, कार्बन कितना है, एक एक, ऑक्सीजन कितना है, तीन तीन, हाँ, जिंक एक एक, क्लोरीन एक या दो, दो लगा दो, तो हाइड्रोजन दो एक तीन हो जाएगा, वहां पर दो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया ना, तो क्या करोगे आप, हाइड्रोजन यहां पर यहां पर दो लगा दो, ये, तो यहां पर भी दो लगाना पड़ेगा, है ना, यहां दो पानी लगा दोगे, दो ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन, तीन दो छह, यहां पर फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अच्छा, और यहां आपने टू लगा दिया तो जिंक बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, चार हो गया, तो आपको यहां चार लगाना पड़ेगा, चार HCl, चार चार दो दो, यानी चार दो छह हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन कितना था आपके पास, 3 था ना, 2 कार्बन हो गया, तो आप क्या करोगे, इधर 2 लगा दोगे, इधर अगर आपने 2 लगा दिया तो नहीं, यहां आपने 2 लगा दिया, 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 जिंक, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 4 कितना, 6 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन हो रहा है, 4, तो अब 3 करोगे ना, 3 करोगे तो 3 ऑक्सीजन, 3 2 5, 5 होता। अच्छा, जो जनरली होता क्या है, आपको क्या 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 आपको फॉलो करना होता है बैलेंसिंग में, मैंने जब बताया था पहले चैप्टर में, अगर आपको याद हो कि मेटल को सबसे पहले किया जाता है, तो अगर आप जिंक को पहले देखोगे तो जिंक बैलेंस्ड है, फिर आप करोगे किसको, नॉन मेटल को, नॉन मेटल को देखोगे, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, बिल्कुल है, किसी को भी करो, मान लो कार्बन को मैं पहले लेता हूं, कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है, कार्बन संतुष्ट है, क्लोरीन लेकिन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन एक है यहाँ 2 है, तो आप पहले 2 लगाओगे, लगाओगे तो 2 क्लोरीन लगाया तो बैलेंस्ड हो गया, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, फिर आप किस में जाओगे, हाइड्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, कि ऑक्सीजन में फिर हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में पहले, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, संतुष्ट होगा तो आपको 2 लगाना है, वो 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाओगे तो 2 हाइड्रोजन तो हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, 6, तो आपको यहां 6 करना है, तो आप यहां 4 लगा दोगे, 4 अगर लगा दिया तो आपका ऑक्सीजन क्या बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन तो यहां 2 है, यहां 2 है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, यहां 2 जिंक है, तो यहां पे काम करो, 3 कर दो, 3 कर दो, 3 2 6, 2 2, यहाँ 4 लगा दो, तो यहाँ 2 लगा दो, अब देखो तो बैलेंस्ड है कि नहीं, अब भी बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको यहाँ 2 लगाना है, 2 2 4 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन, बहुत सोचने वाला है, बैलेंसिंग आप लोग खुद एक बार कर लेना, ठीक है। दरअसल ऐसा है क्या कि अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए इसको, तो आप लोग का ये टास्क रहेगा, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो ये तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको याद रखना, अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ अमेजिंग टॉपिक्स के साथ, इसे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।